Hi friends, in today's class we'll discuss about the few numerical based on the last session that we completed photoelectric effect. So आज का सेशन पूरा photoelectric effect के ऊपर के numerical है. Once again we start with the first few solved example and then followed by end exercise few question. So first part, solved example number 2.6. Calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. Once again, calculate the energy. E ढूंढना है. 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14. Statement कैसे start करेंगे? You are given nu, that is 5 into 10 to the power 14 hertz. H is nothing but Planck's constant, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So E is equal to H nu. H पता है, nu आपको दिया हुआ, simplify कीजिए, you get your answer. But here in case statement clearly says that energy of 1 mole of photon, 1 mole of photon तो आपको एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So यही सेम इक्वेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. E is equal to NH nu. तो सीधा n की वैल्यू अगर आप ऊपर भी रख दोगे तो भी चलेगा. मैंने क्या किया, सबसे पहले h nu से इक्वेशन ढूंढा एंड देन e is equal to this whatever the value we get it over here and multiply by this Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. Why? Because energy of 1 mole of photons. तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किए. कई बार कई स्कूल के अंदर ये 2 स्टेप में किया होता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स काट लेते हैं. बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके. इज इक्वल टू एन एच न्यू करके भी आप कर सकते हो. सीधा एन की वैल्यू यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू गेट योर आंसर. फाइन. सो दैट इज 2.6. योर आंसर इज 199.51 किलो जूल पर मोल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल. वंस अगेन चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ईजी, बट देर आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस की अगर आप वैल्यू देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो आप अच्छे से कीजिएगा. So आपको कोई इश्यू ना आए, otherwise you make a lots of differences in answer. So now let's start with the 2.7 statement. What is there in 2.7? 2.7 statement है a 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Nanometer is 10 to the power minus 9. Calculate the number of photons emit per second. Once again emphasize on a word, emit per second by the bulb. So this is all about your statement. Once again statement आप अच्छे से पढ़ लीजिए, then we start with the numerical part. So 100 watt bulb is nothing but 100 joule per second. Now first step, E is equal to H nu and nu is equal to C upon lambda. तो E is equal to H nu, H upon C upon lambda. सो H इंटू सी. अब ये जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन है वो आप अच्छे से याद करके ही रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये सेशन के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सभी के अंदर एच सी आपको मल्टीप्लाई. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 18. तो 19 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. हर बार ये आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, सीधा आप 19 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो. सो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है 400 नैनोमीटर. तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. सो व्हाट यू गेट 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा है, इसीलिए 100 वोल्ट है तो 100 जूल पर सेकेंड है, तो 100 डिवाइड बाय वॉट एवर द एनर्जी. ये सारी की सारी एनर्जी किसकी आई, 100 की, तो आपको उसको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फोटोन इज नथिंग बट 100 divided by 4.969 into 10 to the power 19. You get your answer, that is 2.012 into 10 to the power 20 second inverse. So this is all about your statement number 2.7 solved example. ऐसा ही सेम टू सेम डिटो टू डिटो न्यूमेरिकल अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज में. और एंड एक्सरसाइज में आई थिंक 100 की जगह पे 25 वॉट के से न्यूमेरिकल पूछा है. एंड एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.7. Next is 2.8. When the electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy of
1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? Now this is called threshold frequency. Minimum energy required to remove one electron from the metal surfaces is known as threshold frequency. तो आपको सबसे पहले चीज यहाँ पे ढूंढनी है threshold frequency. What is the maximum wavelength that will causes a photoelectron to be emitted? तो आपको दूसरा ढूंढना है फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ भी ढूंढनी है आपको यहाँ पे. सो स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज दी हुई है? सबसे पहले इंसिडेंट लाइट जो फॉल ऑन सरफेस हो रहा है वो क्या है? 300 नैनोमीटर. उस इतनी वेवलेंथ से लाइट स्ट्राइक कर रहा है सरफेस के ऊपर. आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी हुई है. काइनेटिक एनर्जी इज 1.68 into 10 to the power 5. आपको ढूंढना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ. वंस अगेन स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, देन वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो after statement E is equal to h nu and nu is nothing but c upon lambda. Now per mole, that's why n से multiply किया हुआ, तो E is equal to NHC upon lambda. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे E की वैल्यू मिल गई टोटल एनर्जी. N is nothing but एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय H प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय C. देखिए दोस्तों 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3.0, वही आप दोनों की मल्टीप्लीकेशन 19 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगी डिवाइडेड बाय 300. अब जब भी आप ये सारी कैलकुलेशंस करो तो 10 टू द पावर एक साइड ले लीजिए. देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7, क्योंकि 302 यहाँ पे ले लिया तो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर -7. ये -7 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर +7 हो जाएगा. अब यहाँ पे 23 है, +7 आ गया तो ये टोटल 30 हो गया. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपने करके रखा हुआ है. ये 6.0 है और ये 3 है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन कैंसिल कर लोगे तो ये 2 पॉइंट के आसपास समथिंग आ जाएगा आंसर. सो लाइकवाइज ये सारी न्यूमेरिकल आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं. कंडीशंस आपका थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर ग्रिप अच्छा होना चाहिए, जो आपका होगा ही डेफिनेटली, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ही करना है. स्टेप नंबर 2, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ एनर्जी. ये क्या है? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर लो. याद है ना आपको इक्वेशन? h nu is equal to h nu 0 plus half mv square. So half mv square is nothing but h nu minus h nu 0. तो h nu की वैल्यू ये रही. h nu 0 की वैल्यू ढूंढनी है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस कर ली तो यू गेट h nu 0. तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा था, नाउ दिस इज फॉर n मॉलिक्यूल. सो फॉर 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? अब n से डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ पे. सो द मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो यू कैन गेट 3.84 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल. एंड लास्ट आपको सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था, वेवलेंथ क्या होगी, कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम मिलेगा? सो दैट इज वेवलेंथ लैम्डा इज नथिंग बट hc अपॉन E. सो दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8. सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 3.84, ये वैल्यू जो आई वो रख दीजिए. फाइनली योर आंसर इज 517 नैनोमीटर. वंस अगेन देखिए HC का मल्टीप्लीकेशन रेडी है, वो 19 पॉइंट समथिंग होगा. डिवाइडेड बाय आपका ये 10 टू द पावर सीधा ऊपर ले लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा. बस खाली आप एक ही डिवाइड करना है एंड देन यू गेट योर आंसर. दिस 517 नैनोमीटर इज योर आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2.8. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2.9. 2.9 क्या बता रहा है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 फॉर अ मेटल इज 7.0 into 10 to the power 14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emit when the radiation of frequency nu is equal to 1.0 into 10 to the power 15 second inverse hits the metal. वंस अगेन स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए. गिवन डेटा क्या दिया है? वंस अगेन एक्सट्रैक्ट कीजिए, क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv स्क्वायर ढूंढना है. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यू 0 दी हुई है. तो आपका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0. h को जो अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो न्यू माइनस न्यू 0, वो दोनों की दोनों वैल्यू दी हुई है. सिंपल हो गया न्यूमेरिकल आपके लिए. देखिए कैसे स्टार्ट करोगे आप.
काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एच को निकालो कॉमन, सो एच को कॉमन निकालोगे तो क्या बाकी बचा, न्यू माइनस न्यू जीरो, तो एच बाहर निकल गया, न्यू माइनस न्यू जीरो, न्यू एंड न्यू माइनस दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है गिवन डेटा के अंदर, सो न्यू एंड न्यू माइनस की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब सब्सट्रैक्शन माइनस करना हो तो ये 10 टू द पावर 15 है, ये 14 है, तो ये एक डिजिट आगे दे दो तो ये 10 हो जाएगा, एच की वैल्यू सेम 10 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 7.0 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 को बाहर निकालो, 10 माइनस 7 इज 3 एंड सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो ये 6.626, ये भी आपका आ गया आंसर, देखो 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3.0 करते थे कि नहीं करते थे, उसी के आसपास आके बैठा आंसर, that is 1.988 into 10 to the power minus 19 joule. So this is all about your all the solved example 2.6 से लेके 2.9. Now next we move on to this end exercise numerical. End exercise 2.9 really very interesting one of my favorite and बहुत सारे स्कूलों में पूछा हुआ क्वेश्चन। A photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on the metal surfaces. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, आपको वेवलेंथ दी हुई है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन क्या होता है दोस्तों, एच न्यू जीरो, यस एच न्यू जीरो इज नथिंग बट वर्क फंक्शन इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, जूल पे नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट फर्स्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज ढूंढनी है, 3 मार्क के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहली चीज एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, एच इंटू सी डिवाइड बाय लैम्बडा। अब वंस अगेन देखिए एच एन सी न्यूमरेटर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होकर रेडी ही पड़ा है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 ऊपर चला जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, एंड जो भी वैल्यू 19 पॉइंट है उसको 4 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पर दोस्त यहाँ पे ये आंसर एंड नहीं होता है, ये तो है जूल में, आपको ढूंढना है इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू दी हुई है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो उससे डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपका 1 मार्क खत्म हुआ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन इज नथिंग बट ई माइनस वर्क फंक्शन। अब ई की वैल्यू क्या है, अभी आपने ऊपर ढूंढी, दैट इज 3.1 माइनस 2.13। सर ये 2.13 कहाँ पे आया, देखो गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करो, गिवन डेटा में से सब कुछ चीज मिल जाती है। क्या बताया हुआ, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका वर्क फंक्शन की वैल्यू है। सो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई 2.13, टोटल एनर्जी आपको मिली है, तो ये आपका मिल गया काइनेटिक एनर्जी 3.1 माइनस 2.13 इज इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन इज हाफ mv स्क्वायर, वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब उसको जूल में कन्वर्ट करो तो 0.97 मल्टीप्लाई बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो फर्स्ट स्टेप v स्क्वायर वेलोसिटी ढूंढनी है, तो यहाँ पे v को इक्वेशन का फॉर्म बनाओ, बाकी सारी चीज सामने चली जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 1.602 डिवाइडेड बाय m। m क्या है दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो ये इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वंस अगेन 10 टू द पावर माइनस 31 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 31। सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 9.1 कर लीजिए, यू गेट योर आंसर 0.34 इंटू 10 टू द पावर 12। ये क्या है दोस्तों, v स्क्वायर है। आपको तो वेलोसिटी ढूंढनी है, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, अब इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली न्यू इज इक्वल टू वॉट एवर द वैल्यू यू गेट रेस टू हाफ, तो रेस टू हाफ करोगे तो यू गेट योर आंसर, दैट इज 0.583 इंटू 10 टू द पावर 6। अब 0 हाफ करने के लिए भी एक सिंपल सा लॉजिक है, आप अंडर रूट निकाल सकते हो, अंडर रूट नहीं निकाल सकते हो तो आप लॉग से भी ये वैल्यू ढूंढ सकते हो।
अदरवाइज ये डेसिमल की भी करामत है। डेसिमल देखिए 10 टू द पावर 12 है तो ये सीधा 6 हो जाएगा। अब दिस इज 0.34 है तो आप 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो 6 के स्क्वायर 0.6 के नजदीक आंसर आना चाहिए। कितना कम है 0.34, तो 0.58 के आसपास आंसर आ गया ना। तो लाइकवाइज आप ओरली भी थोड़ा सा निकाल सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर 0.583 इंटू 10 टू द पावर 6। फाइनल आंसर 5.83 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल। बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल है, 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ढूंढा, एनर्जी ई। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन किया। और लास्ट में हमने क्या ढूंढा, वेलोसिटी। वेलोसिटी वी स्क्वायर मिला एंड वी स्क्वायर के बाद हमें क्या मिल गया, अंडर रूट निकाल के ही वेलोसिटी मिल गई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.9। 2.10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 nanometer is just sufficient to ionize a sodium atom. Calculate the ionization energy of a sodium in kilojoule. क्लियरली पूछा हुआ है, किलोजूल में ही आपको आंसर निकालना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल जो जूल आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर लो। सो E is equal to NHC अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा क्या है 242 नैनोमीटर, C क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, H क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू एंड हो गया ड्रॉ नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C देखिए वंस अगेन ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा 242 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 1000। सर ये 1000 कहाँ से आया दोस्त, आपको आंसर ढूंढना था किलो जूल में, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लिया है। तो आपका आंसर बन जाएगा 494 किलो जूल पर मोल। So this is all about your statement number 2.10 and exercise. Next we moved on to this 2.11.1. So 2.11.1 almost same to the solved example. जो हमने 100 वोल्ट के लिए ढूंढा था ये यहाँ पे 25 वोल्ट के लिए है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Micro is 10 to the power 6 -6. Calculate the rate of emission of this quanta per second. Quanta per second, तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाय वॉट एवर द एनर्जी, यू गेट इट। ऑलमोस्ट सेम, ऊपर क्या था 2.7 में देखिए 100 वोट था, यहाँ पे क्या है 25 वोट, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे नैनोमीटर में था, यहाँ पे है माइक्रोमीटर में, ऑलमोस्ट सेम। सो योर लैम्बडा इज 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6, क्यों, क्योंकि माइक्रोमीटर में है। सो इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, देखिए H एंड C का कॉम्बो आ गया फिर से, डिवाइडेड बाय लैम्बडा 10 टू द पावर 6 ऊपर ले लो, सिंप्लीफाई करो, यू गेट योर आंसर। नाउ रेट ऑफ इमिशन ऑफ पर क्वांटा सेकेंड, दैट इज पावर डिवाइड बाय एनर्जी। सो पावर कितना है 25 वोट, 25 वोट इज नथिंग बट 25 जूल पर सेकेंड। So that is 25 divided by whatever the value you get it. Simplify, you get your answer. That is 7.18 into 10 to the power 19 second inverse. Last numerical of this session, that is 2.12. Electrons are emitted with zero velocity from the metal surfaces when it is exposed to radiation of wavelength 6800 Armstrong. Calculate the threshold frequency nu0 and work function is w0. दो चीज ढूंढनी है, nu0 ढूंढना है and then followed by w0 ढूंढना है. So let's start with the 2.12. Now threshold frequency nu is nothing but c upon lambda. c आपको पता है, lambda आपको दिया हुआ, that is 6800 Armstrong. तो that is 68 into 10 to the power -8. -8 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाय 68, यू गेट योर आंसर 4.41 into 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। सो ये आपका आ गया फर्स्ट nu0। सेकेंड आपको क्या ढूंढना है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट h nu0। सो w0 इज नथिंग बट h nu0। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34। nu0 is 4.41 into 10 to the power 14
सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर 2.92 into 10 to the power minus 19 joule. So this is all about your all the numerical based on photoelectric effect. तो लास्ट सेशन में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थियोरेटिकल पार्ट देखा था. इन दिस सेशन विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.